Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani Classes. আমি আজি দাসনী ক্লাছেছৰ মেইন যি আমি কোৰ ফেকাল্টি টিম যি দাসনী ক্লাছক ইমান দিনে মানে নগাঁৱত এটা পৰ্যায়লৈ উপনীত কৰাইছে। আমি সকলো লগ হৈছোঁ, যিসকল মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট অলৰেডি আমাৰ তাত আহি জইন কৰিছে। আমি সকলোকে মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ কাৰণে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহুত মানুহৰ মাজত কুৱেশ্যনছ যে আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড ল'ম নে আমি নৰ্মেল ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড কলেজত ক্লাছ ল'ম, তাৰ লগত টিউশ্যন ক্লাছেছ কৰিম, এই গোটেইখিনি কথা আহি পৰিছে কিছুমান মনলৈ ডাউট। আৰু 2 নম্বৰতে বহুতে দাসৱানী ক্লাছেছৰ ফেকাল্টি কোনে কোনে পঢ়াই আছে, কি কথা সেইখিনিও জানিব বিচাৰিছে। আমাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিছে, তো সেই কুৱেশ্যনছখিনিৰো আনচাৰ আমি ইয়াত দিম। তো এতিয়া আমি প্ৰথমতেই চিনাকি কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ লগত আমাৰ ফেকাল্টি। মই তোমালোকক ফিজিক্স পঢ়াওঁ, বহুতে জানাই মই ইয়াৰে যেতিয়া। তাৰ লগতেও মোৰ লগত ৰঞ্জিত ছাৰ আছে, দেন ছাৰেও ফিজিক্স পঢ়াই আছে। আৰু অলৰেডি ক্লাছ 10 পাছ আউট হোৱা যিটো ফাৰ্ষ্ট বেটছ, সেই বেটছটো আমাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। সেই বেটছতো তোমালোকৰ লগৰ কোনোবাই পঢ়ি আছে, তুমি সুধিব পাৰা কোন ছাৰে পঢ়াইছে, কেনেকুৱা পঢ়াইছে, তুমি ফিডবেক ল'ব পাৰা। 2 নম্বৰতে কেমেষ্ট্ৰিত আছে আমাৰ শুভম ছাৰ আছে। শুভম ছাৰৰ ঘৰ ধানবাদত হয়। শুভম ছাৰেও ধুনীয়াকৈ কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছেছবোৰ কৰি আছে। তোমালোকৰ 11ত যিসকল ষ্টুডেণ্টছে অলৰেডি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছে, বা আমাৰ 12ত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰি আছে, বা আমাৰ ড্ৰপাৰো এটা বেটছ অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে, ফাৰ্ষ্ট বেটছ, তেওঁলোককো সুধিব পাৰা, তেওঁলোকৰ পৰাও ফিডবেক ল'ব পাৰা। তাৰপিছতে আহি গ'ল বায়'লজি। আমাৰ লগত অমৰ শংকৰ ছাৰ আছে। মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কি দিম ছাৰৰ বিষয়ে, ছাৰে অলৰেডি ইমান বছৰত পঢ়াই আছে আমাৰ লগত। অলৰেডি 10ৰ যিখিনি 11 ষ্টুডেণ্টছ আহিছে তেখেতসকলেও ক্লাছ কৰিছে। আমাৰ তাতে 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীও ক্লাছ কৰি আছে, আৰু তাৰ লগতে ড্ৰপাৰখিনিও আছেই, তেওঁলোকো ফিডবেক ল'ব পাৰা। তাৰপিছতে আমাৰ লগত এই বছৰ জইন হৈছে মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত অমৰজিৎ ছাৰ। অমৰজিৎ ছাৰ তোমাৰ পুনেৰ পৰা আহি আমাৰ লগত জইন কৰিছে। দেন অমৰজিৎ ছাৰেও অলৰেডি 11 মুভিং যিখিনি ফাৰ্ষ্ট বেটছ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 23 এপ্ৰিলৰ পৰা, তেওঁলোককো ক্লাছ কৰি আছে। আমাৰ ক্লাছ 12ৰ যিখিনি বেটছ আছে তেওঁলোকৰো ক্লাছ কৰিছে, ড্ৰপাৰো ক্লাছ কৰিছে, ক্ৰেছ কৰ্চতো ক্লাছ কৰি আছে। লগভগ আজি 1-1.5 মাহ হৈ গ'ল। গতিকে তোমালোকৰ লগৰ যি ষ্টুডেণ্টছ আছে, যোনে পঢ়ি আছে, ফিডবেক আৰামছে ল'ব পাৰা। লৈ পেলাই তোমালোকে বৰ্তমান দাসৱানীত ফেকাল্টিজ আছে নে নাই, ফেকাল্টিজে কেনেকুৱা পঢ়াই আছে, বা কিছুমান আমি শুনি আছোঁ নগাঁৱত বোলে ফেকাল্টিজ আনিম বুলি কয়, বা বাহিৰৰ পৰা ফেকাল্টিজ আহিব বুলি কয়, কিন্তু অহা নাই। লোকেল কোনোবা দিয়ে তেওঁলোকে ক্লাছবোৰ চলাই আছে। তোমালোকে সকলোৰে খবৰ লৈ পেলাই তোমালোকে আৰামছে নিজে ভালদৰে চুজ কৰা। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে ক্লাছ 10ৰ পিছত ইণ্টিগ্ৰেটেড মই চব টিচাৰকে আমাৰ সুধিম, কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহিছে। মইতো বাৰু ইয়াতে আছোঁ, তেওঁলোকেও ক'ব যে আমি নৰ্মেল ট্ৰেডিশ্যনেল কোৰ্চ চুজ কৰোঁ নে ইণ্টিগ্ৰেটেড চুজ কৰোঁ। তো মই পোনপ্ৰথমেই, যিহেতু মেডিকেলৰ ক্ৰেজটো বেছি, ঠিক আছে, मैं पहले ही अपना जो सीनियर सर है बायोलॉजी अमर शंकर सर, वो लगभग 16 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और वो कोटा से रिक्रूटेड था अपना। तो सर से मैं पूछता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड चूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जो नॉर्मल ट्रेडिशनल है, कॉलेज में जाना है या स्कूल में जाना है, उसके बाद शाम को ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना है, वो कौन सा प्रोसेस बच्चों के लिए अच्छा रहेगा? सर से पूछते हैं, सर से जानते हैं, आइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, सभी मैट्रिक पास स्टूडेंट को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन्स। बहुत अच्छा आप लोगों ने रिजल्ट दिया है। रही बात नॉर्मल कोर्स एंड इंटीग्रेटेड का, डियर स्टूडेंट, ट्रूली मैं बोलना चाहूँगा इंटीग्रेटेड कोर्स दी बेस्ट है। इस कोर्स के द्वारा आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका टाइम का सेविंग होगा। टाइम सेविंग इट मीन्स ये हुआ कि एज ए 12 अपियरिंग ही आपका जो भी एम्बिशन है, लाइक अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो मेडिकल में सीट मिलेगा, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो JEE में आपको सीट मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचत होगा। एक बार मॉर्निंग में आएंगे 9 बजे, 3:30 तक क्लासेस करिए, फिर घर पे जाके सेल्फ स्टडी करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इंटीग्रेटेड, और ये इंटीग्रेटेड अपने यहाँ जो दासवानी में चल रहा है दी बेस्ट है, नंबर 1 है आपके मेरिगसम में।
सो मैं तो इतना ही कहूँगा, मोस्ट वेलकम, आइए, बी पॉजिटिव सर। थैंक यू सर। इसके बाद जो जेई का एस्पायरेंट होता है आफ्टर क्लास 10 का, तो उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। और सर एक्चुअली मतलब हमारे पास जो सर है अमरजीत सर, वो लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो क्लास किया है। तो सर का लगभग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। तो सर से हम लोग जानेंगे कि कौन सा चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है, कि हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स ले या हम लोग नॉर्मल स्कूल और जो ट्यूशन वाला सिस्टम है, कौन सा चूज़ करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल द 10 स्टूडेंट। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड कोर्स से आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपको टाइम मिलेगी। दूसरी नंबर बात, जेई का जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि काफ़ी डीप में क्वेश्चन आता है। तो आपको इसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर पढ़ने से बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। मेरी स्टेट में ये कहूँगा कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स में आइए और 2 साल के अंदर यानी फाइनल ईयर में आपका 98 परसेंटाइल लग जाएगा। आप पढ़ के तो देखिए, एक बार कंप्लीट आइए, पॉजिटिव आइए, बिल्कुल आपका अच्छा होगा। इसके बाद अभी जो नीट और जेई दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी रंजित सर है, शुभम सर भी है, और हम लोगों का और 2 सर लगभग 15 तारीख को आके ज्वाइन करेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो तुम लोगों को और सर मिलेगा जो तुम लोगों को पढ़ाएगा, जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो अभी हम लोग आ रहे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे, ठीक है। फिजिक्स में लास्ट में मतलब बोलेंगे कि हम दोनों ही फिजिक्स के हैं, तो ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में सुनते हैं कि सर भी मतलब धनबाद से हैं, बहुत जगह घूमे हैं, पढ़ाया है। तो वो भी अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जहाँ स्कूल कॉलेजेस या डायरेक्टली मुझे क्लास 11-12 उसके बाद मतलब जो सिस्टम है, कौन सा चूज़ करने पे बच्चों को अच्छा होगा और क्यों अच्छा होगा, सर से भी हम लोग सुनना चाहेंगे। सबसे पहले जो 10th के स्टूडेंट जो पास किए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और जैसे सर ने बताया, हमारे अमरजीत सर और अमर सर ने भी बताया कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में मेन जो सबसे है टाइम का बचत होना। तो इंटीग्रेटेड में सच में टाइम बचत होता है, जिससे आपको सेल्फ स्टडी करने में बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है। और अगर आप मतलब पिछले दासवानी का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो जितने सारे लगभग पास किए हैं या मेडिकल सेक्टर में गए हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर में गए हैं, सब जो है दासवानी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से ही मैक्सिमम गए हैं। तो इन जो इंटीग्रेटेड है वो सबसे बेस्ट है बिकॉज ऑफ टाइम सेविंग के लिए, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का भी मौका मिलता है। और थैंक यू। अभी मतलब फिजिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ लेकिन अजित सर भी है, वो मुझसे ज़्यादा क्लासेस लेता है बच्चों का। तो सर से भी जानेंगे, वो पाटना में रहे हैं। तो हम लोग तो जानते हैं पाटना जेई के लिए मतलब इंडिया में जितना भी हो, पाटना वाला बच्चा ही ज़्यादा करते हैं रिजल्ट वगैरह। तो इसीलिए सर पटना से है तो वो पटना का लोकेलिटी के भी जानते हैं। और उस जगह में भी हम लोग सुने हैं कि बच्चा मतलब डायरेक्टली कोचिंग ही जाता है, ठीक है। तो सर क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेटेड से क्या फ़ायदा होगा या नॉर्मल ट्रेडिशनल जो भी करना है, कौन सा प्रोसेस अच्छा होगा बच्चों के लिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत अच्छा 10th में स्कोर किया है। जैसे बात है कि 10th का जो बच्चे होते हैं 10th के बाद ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं, और जो बच्चे ट्रेडिशनल कोर्स करते हुए अपने एम को अचीव करना चाहते हैं उनको अलग से कोचिंग लेना पड़ता है। और अलग से कोचिंग में क्या प्रॉब्लम है, स्कूलिंग अलग से, कोचिंग अलग से, टाइम का मैनेजमेंट आपके पास नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या होता था सर कि मेरे बहुत सारे बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, उनको बोरियत फील होना था और बाद में अपना वो एम भी छोड़ देते थे कि स्कूल मैनेज करेंगे, कोचिंग मैनेज करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फर्स्ट टाइम ट्रूली बोल रहा हूँ, पहली बार मैं यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में सुना। और इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है, मुझे लगा कि मान लें कि इंटीग्रेटेड कोर्स करते हुए भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। इंटीग्रेटेड कोर्स करते हुए आप जो इंटर का सिलेबस है, जेई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, एक साथ आप पढ़ रहे हैं, उसको अलग से पढ़ने के लिए आपको अलग से टाइम पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इसके साथ क्या होगा, आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। 9 to 33 पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिसके कारण आप 12th भी का एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे और हमारे बच्चे रिजल्ट दे देते हैं, जो कि जिसके कारण बहुत बेनिफिट होता है।
और सर कुछ बताएं। अभी मतलब मैं अपना जो हम लोग का दासवानी का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और दूसरा इंस्टीट्यूट का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका जब एक मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ। दासवानी में इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, पहला बात ये है। दासवानी में ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग ले रहा हूँ कॉलेज स्कूल में दूसरा जगह पे पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दासवानी में इंटीग्रेटेड ही है जिसमें आपको कॉलेजेस का क्लासेस कोचिंग का क्लासेस एक ही जगह पे दिया जाएगा और इधर से आपको बोर्ड का एग्जाम भी दिलवा जाएगा। ठीक है, दूसरा जगह मैं देखता हूँ या सुनता हूँ कि कोचिंग का फीस अलग है, उसके बाद बोर्ड के लिए उन लोगों को अलग से फीस देना पड़ता है और उसके बाद उन लोगों का जो लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स है उसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए अलग से स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन इसमें दासवानी में पूरा सिस्टम ही इंटीग्रेटेड है। इसमें आपको कॉलेजेस का जो बोर्ड लेवल का जो इंग्लिश असमिया, उसके बाद अल्टरनेटिव इंग्लिश और उसके बाद प्रैक्टिकल्स वगैरह का क्लासेस, उसके साथ पैरेलली आपको नीट और जेई के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट करना है वो एक साथ मिलेगा। और इसमें फीस का भी कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ये कोचिंग का फीस है, ये बोर्ड एग्जाम का फीस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा एक ही फीस है पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स का। ठीक है, पर एकदम नॉमिनल फीस है, मतलब कहीं से भी उठा लो, नौगांव में ही हो या गुवाहाटी में ही हो, जहीं पे भी मतलब जाओ तो दासवानी का फीस आपको आधा ही मिलेगा सबसे। ठीक है, ये फीस है हम लोग कम रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का सिस्टम। अब देखिए फैकल्टी, हम 500 फैकल्टी बैठा हुआ है, मैं आपको ओपन चैलेंज ही दे देता हूँ, नौगांव में जितना भी कोचिंग क्लासेस है वो अपना पूरा फैकल्टी को सामने ला के दिखाए। ठीक है, कि हम लोगों का ऐसा फैकल्टी है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, ये है, ऐसा दिखाए। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसे लोगों को बदनाम नहीं करना है। ठीक है, ये है पहला बात। दूसरा बात, दासवानी का इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसा है कि ये प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है, ये सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि चालू सिस्टम है, शुरुआत हो रहा है, लगभग 3-4 साल से ये बैचेस मतलब निकाल रहा है। इस साल भी जेई का हम लोगों ने लगभग 9 बच्चे को निकाल दिया है रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई घर घर जाके या रास्ते पे मिल के दासवानी का बदनाम गा देने से या कुछ बोल देने से कुछ खराब भी होगा, ऐसा नहीं है। क्लासेस चल रहा है, तुम लोग अपना जो फ्रेंड सर्कल है उससे पूछो, उन लोगों से बात करो, करके देख लो कि मतलब सिस्टम सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेटेड बैच का। अभी हम लोग का नया जो संडे में आ रहा है अपना जो बिगेस्ट बोला जाए तो एग्जाम, जिसके लिए हम लोग पूरा साल अपना बच्चा मेहनत कर रहा है, 2 साल से बच्चा मेहनत कर रहा है, अपना नीट का एग्जाम। तो इसी वीडियो के थ्रू ही हम लोग अपना नीट्स वाले बच्चों को भी बैच मतलब उससे मतलब देते हैं। और लास्ट मिनट मतलब लास्ट अभी 48 आवर्स पेंडिंग है, तो उन लोगों को क्या क्या करना है ये हम लोग बच्चों को बोलेंगे। तो अभी अमर सर से पहले जान लेते हैं, क्योंकि मतलब सर का ही 360 मार्क का सिलेबस है। ठीक है, तो सर से पूछते हैं कि आज 48 आवर्स बाकी है, तो बच्चों को अभी क्या करना है। मतलब सबसे पहले डियर नीट एस्पिरेंट, बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत मैं शुभकामना दे रहा हूँ कि 5 मई को अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे। डियर स्टूडेंट, रही बात ये 48 आवर्स कैसे आप करें, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड आप टाइम मैनेज करिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये आखिर है क्या, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस में जो भी क्वेश्चंस फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, बायो वाले सर ने दिया और आपने उसे सॉल्यूशन भी दिया, तो इससे एक मैसेज जा रहा है ना कि एवरी प्रॉब्लम्स हैज़ ए सॉल्यूशंस। तो क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम ना बने तो उसका भी लेटर ऑन सॉल्यूशंस हो सकता है। और फर्स्ट क्लास में जब मैं जाता हूँ तो आपको साइंस का डेफिनेशंस बताता हूँ, है ना। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, सो दैट आपके पास में नॉलेज है, बस उसको सिस्टमेटिक वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अप्लाई करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में, वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ चॉइस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलिमिनेशन ऑफ चॉइस इट मीन्स अगर 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, 48 आवर्स है आपके पास में, टॉपिक भी बहुत है। अभी एनसीईआरटी का जो समरी दिया हुआ है, ठीक है ना, जो मुश्किल से 2-3-1 पैराग्राफ में है, सभी चैप्टर के समरी को आप पढ़ जाइए, सिर्फ समरी को पढ़ जाइए, आपका पूरा सिलेबस ही रिकैप हो जाएगा, रिवीजन में आ जाएगा।
तो इसी के साथ अगेन आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। उसके बाद हम लोग अभी रंजित सर से पूछेंगे कि अभी लास्ट थे उस दिन मुझे भी 2-3 बच्चों ने पूछा सर अभी क्या करूँ, मैंने बोला अभी क्या करना है, टेक्स्ट बुक में ऊपर देख लो भाई, ठीक है। तो आपसे मैं पूछता हूँ आप क्या बोलेंगे अपने बच्चों को। हेलो माय स्टूडेंट्स, अभी तो मतलब समझो कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, तो मुझे तो ये सिर्फ उम्मीद है आपसे कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है और उस मेहनत को कैसे रिजल्ट में बनाना है। तो अभी मैं सिर्फ यही बोलूँगा, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, शांत रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जैसे आप मेहनत करते रहिए और लास्ट वर्ड है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। उसके बाद हम शुभम सर से लास्ट मतलब पूछेंगे, क्योंकि अभी आपने तो बहुत जगह पढ़ाया है, तो लास्ट 40 ईयर्स में अभी बच्चों को केमिस्ट्री में अच्छा मार्क लाने के लिए, अभी रिलैक्स मूड में रहने के लिए, क्योंकि अच्छा मार्क तो जो पढ़ रहा है वो तो लाएगा ही, रिलैक्स मूड में अभी कैसा रहे, मतलब कूल होके। सबसे पहले तो आपको जो आने वाली नीट का एग्ज़ाम है 5 मई को, उसके लिए शुभकामनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर सके और आपके माता पिता अब 10वीं क्लास का नाम रोशन कर सके। और जो अभी एग्ज़ाम में 48 आवर बचा हुआ है, 48 आवर में ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हारा रिजल्ट ज़रूर होगा। और साथ ही साथ जैसे 48 आवर, मान लीजिए कि संडे को एग्ज़ाम है तो सैटरडे नाइट को तुम्हें ये नहीं कि पूरा रात भर पढ़ के चले जाए, सुबह तक पढ़ दिए फिर एग्ज़ाम देने चले, नहीं, रिलैक्स होना है। रिलैक्स होकर आराम से पूरा 7-8 घंटे का नींद लेना है और नींद लेने के बाद फिर आराम से, ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं, एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाना है। और मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ कि वो क्या करते हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो पहले ही वो टिक कर लेते हैं, उसके बाद में वो सर्कल करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूँ कि वो जानते हुए भी उनका छूट जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। तो ठीक है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना और इस बार जो है एग्ज़ाम देके तुम अच्छे कॉलेज में जाओ, एम्स में जाओ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस बार का जो दिवाली मनाओ, वो मतलब इस बार की दिवाली एम्स वाली। तो धन्यवाद। थैंक यू सर। तो लास्टত আমি সকলোকে নগাঁও দাসনী ফালৰ পৰা আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টকে নীট পৰীক্ষাৰ কাৰণে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হয় আৰু অসমৰ ভিতৰত নগাঁৱতে পঢ়ি তোমালোকে যাতে অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত তোমালোকে সফল হ'ব পাৰা, তাৰে শুভকামনাৰে আমি সকলোকে আমাৰ সকলো ফেকাল্টিৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।